400 का नारा लगा रहे हैं। चौकीदार बोल रहे हैं कि अभी मंदिर जो तैयार हो रहा है उसके लिए वो अभी व्यस्त है। तो चौकीदार सब कुछ कर रहे हैं पर चौकीदार नौजवानों के लिए नहीं देख रहे। यूथ को रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार, शिक्षा और भूख मारी से जो इंसान मर रहे हैं भारतवर्ष में, गोटा जो कंडीशन है अभी इंडिया का, you see on that, you speak on that. There are thousands of people who are jobless. जॉब नहीं है। एक मंदिर बनाने से जॉब नहीं होगा। Like India, where the constitution gives us the right of each and every political to believe each and every political ideology, to believe each and every religious ideology. In that you can have a mandir, you can have a masjid, you can have a church, you can have anything. You can have nothing. Or you can have nothing, both. But if you are going to open it, people are excited, people will go there. It's not a big issue. The issue should be that the persons who are jobless, where is their job? He urged at the second round when he formed the government at that time, he said that 2 crores of job per year. Where is the 2 crore per year job? Where is the food? If you see the index, food index, out of 120 countries, India is standing in 114. So come in the statistics. आप बोल रहे हैं कि देश का अर्थनीति जो आपने किया, जीएसटी लाए, ये किया, वो किया, नोटबंदी किया। आप बोलिए मेरे को, नोटबंदी 500,000 का नोट बंद करके, what's the black money came back? ब्लैक मनी वापस आए। जो लोग बोलना चाहते हैं कि ब्लैक मनी वापस आए हैं, सूद खमारी नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है। आप आज पश्चिम बंगाल में देखिए, what is the condition of state of West Bengal? The thing is that when he came to power, there was a issue or people's call that he is a चाय वाला। अब चाय वाला क्या करता है? चाय बेच, sells चाय। What he did in last 10 years, he sell my whole country. You see in coal findings, you see the railways, you see the privatization in banking, you see the banking marginalization. भाई देश बेच रहा है। चाय बेचने का काम था, अभी देश बेच रहा है। 50 लाख का कोट पहन के बाहर जाके 10 बात बोल सकते हैं, पर बेकार नौजवान जो देश का फ्यूचर है, उन फ्यूचर को वो कभी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जॉब चाहिए उसके लिए। मंदिर मस्जिद सब ठीक है, जॉब कहाँ है? I would ask my honorable prime minister of my country that it is okay to go and visit in temples, it is okay to go and visit shivlingas and to have meditations, but where is the job for the people who are in need? MNC कंपनीज कहाँ है? बड़ा कंपनीज कहाँ है? आप विदेश घूम रहे हो, आप जाके बात पेश कर रहे हो अपना देश का, तब आप बोलिए कि बाहर का जो मल्टी बिलियनर कंपनीज है, MNC कंपनीज है, वो कहाँ आ रहे हैं देश में? इलेक्शन शुरू करने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए पहले। ये तो तैयारी हो ही गया है। तैयारी हो गया है, पर अभी तक चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है कि क्या है? चौकीदार क्या नहीं करेंगे? चौकीदार 400 का नारा लगा रहे हैं। चौकीदार बोल रहे हैं कि अभी मंदिर जो तैयार हो रहा है उसके लिए वो अभी व्यस्त है। तो चौकीदार सब कुछ कर रहे हैं पर चौकीदार नौजवानों के लिए नहीं देख रहे। यूथ को रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार, शिक्षा और भूख मारी से जो इंसान मर रहे हैं भारतवर्ष में, गोटा जो कंडीशन है अभी इंडिया का, you see on that, you speak on that. There are thousands of people who are jobless. जॉब नहीं है। एक मंदिर बनाने से जॉब नहीं होगा। सही बात। आपको कारखाना चाहिए बड़ा कोई। I have seen so many people are very excited about 2020 January, 22 January because the Ram Mandir inauguration is going to happen. So do you feel that it's a political game to inaugurate just before the Lok Sabha election? See, in a country like India, where the constitution gives us the right of each and every political to believe each and every political ideology, to believe each and every religious ideology. In that you can have a mandir, you can have a masjid, you can have a church, you can have anything. You can have nothing. Or you can have nothing, both. But if you are going to open it, people are excited, people will go there. It's not a big issue. The issue should be that the persons who are jobless, where is their job? He urged at the second round when he formed the government at that time, he said that 2 crores of job per year. Where is the 2 crore per year job? Where is the food? If you see the index, food index, out of 120 countries, India is standing in 114.
सो कम इन द स्टैटिस्टिक्स। आप बोल रहे हैं कि देश का अर्थनीति जो आपने किया, जीएसटी लाए, ये किया वो किया, नोटबंदी किया, आप बोलिए मेरे को, नोटबंदी 500 1000 का नोट बंद करके वॉज द ब्लैक मनी केम बैक, ब्लैक मनी वापस आए? जो लोग बोलना चाहते हैं कि ब्लैक मनी वापस आए हैं, सूद कमारी नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है, अब आज पश्चिम बंगाल में देखिए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? In state of West Bengal, you go and see the lower class Trinamool hooligan leaders, they are having crores and crores of entities. So, अगर 500 1000 बंद करने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा देश में, इससे कुछ नहीं होगा। अदानी अंबानी का राज चल रहा है देश में, इस अदानी अंबानी का राज के खिलाफ हम डीवाईएफआई सिर्फ छोड़ के गोटा देश में जो इंडिया जोट जो भी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम जोट नहीं कर रहे, इसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे। ये अंडरस्टैंडिंग है, द प्लेटफॉर्म इज फॉर rejecting BJP and RSS. If you suppose to rate Pradhanmantri Narendra Modi according to his last 10 years, so how you rate him? So the thing is that when he came to power, there was a issue or people's call that he is a chai wala. अब चाय वाला क्या करता है? चाय sells chai. What he did in last 10 years, he sell my whole country. You see in coal findings, you see the railways, you see the privatization in banking, you see the banking marginalization. भाई देश बेच रहा है, चाय बेचने का काम था, अभी देश बेच रहा है। 50 लाख का कोट पहन के बाहर जाके 10 बात बोल सकते हैं, पर बेकार नौजवान जो देश का फ्यूचर है, उन फ्यूचर को वो कभी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जॉब चाहिए उसके लिए। मंदिर मस्जिद सब ठीक है, जॉब कहाँ है? If you get a supposed to ask something, what you wanna ask to Prime Minister Narendra Modi? I would ask my honorable Prime Minister of my country that it is okay to go and visit in temples. It is okay to go and visit Shivlingas and to have meditations. But where is the job for the people who are in need? MNC कंपनीज का है, बड़ा कंपनीज का है, आप विदेश घूम रहे हो, आप जाके बात पेश कर रहे हो अपना देश का, तब आप बोलिए कि बाहर का जो मल्टी-बिलियनर कंपनीज है, MNC कंपनीज है, वो कहाँ आ रहे हैं देश में? कौन सा नौजवान को मतलब जॉब दे रहे? आप छोड़ दीजिए सब कुछ। रेलवेज, एक रेलवेज में 50 लाख के ऊपर वैकेंसीज है, 50 लाख। RRB एग्जामिनेशंस लास्ट कब हुआ था? मोदी का एग्जामिनेशन है, मोदी जी को लेना है। अब मोदी जी कब ये एग्जाम लेंगे, कब मंदिर से उनको रहरात मिलेगा, कब हम लोगों को एक नौकरी मिलेगा, अब उनके ऊपर है। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां चल चुकी है। लेफ्ट फ्रंट या इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल जो है अपने तौर पर लड़ने के लिए तैयार है। एक बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में 2 दरार पैदा हो सकती है। पहला है ममता बनर्जी के नाम पर, दूसरा है नीतीश कुमार के नाम पर। यह गठबंधन से कभी भी हट सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। 2024 में क्या कुछ होगा जनता तय करेगी, मगर 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जो है मेजर कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और वो उसके सत्ता में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।